Yeah, now it's better. I think it's good. Go Yeah. ahead, Mithilesh. Yeah, sir. Yeah. We have been assigned the work of microservice, which is blockchain, which is basically a backend service capturing signatures, which are optical, picture, and digital signatures, along with the real-time date and location with timestamp. Okay. So my question is, along with this victim signature, what else can we add along the like the personal information regarding the victims or any other information along with the signature? What else can be added in the blockchain service? Basically, what I presume that information must have been captured earlier, because before that, the whole content of the FIR has been captured. So, what is victim basically address, uske parents, and address, and all those details will be captured, and you can look if there are any gap, right? But we presume that FIR का content और FIR के पहले victim के पूरा detail including some certification that will be captured by the community device or other devices which are जो है ना helping for the FIR. FIR को लिखने में जो ऐप मदद कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप बेसिस हो या वो ऐप बेस हो या IoT डिवाइस हो, वो जो है एक विक्टिम की आइडेंटिटी और फिर जो है कंटेंट ऑफ एफआईआर, ये दो चीजें वी प्रिज्यूम कि वो कैप्चर कर चुके होंगे, राइट? यदि उसमें कुछ गैप है तो वो गैप आपको जो है ना यू कैन थिंक ऑफ फिलिंग, बट उसको गैप आपको फिल करने की बजाय द गैप विल बी फिल्ड एट देयर एंड, बिकॉज योर सर्विस इज माइक्रो सर्विस फॉर द सिग्नेचर अलोन. और हमने जो सिग्नेचर की बात कही है, देयर आर द 4 टाइप ऑफ सिग्नेचर वी आर टॉकिंग. क्योंकि इसमें जो फोटो लेगा वो फोटो लिया जाएगा, इट विल नॉट बी अपलोडेड फोटो. सो द फोटो विल आल्सो बिकम ए सिग्नेचर इन इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है क्या? फोटो इटसेल्फ विल बी ए सिग्नेचर. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So photo will not be uploaded. Photo is taken by the app, and the moment photo is taken, it is also, once it is a good quality photograph, it will be uh, encrypted with the date, time, and location stamp, and then it will be protected through the blockchain technology, and it will become a photo signature. Another signature is the optical signature, so which may be taken on mobile phone screen, or यदि desktop है तो it may be taken on the signature pad, या आजकल के जो नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसमें तो डेस्कटॉप में भी स्क्रीन इनेबल हो गई है. सो वट एवर बी द काइंड ऑफ थिंग, whether it is a screen or it is a signature pad, but it will be real time basis mein it will be capturing those signature, and again it will be encrypting them along with the date, time, and location stamp, and they will be protected with the hash value, and they will be protected with the chain value. So it will become optical signature, the signature which generally we make, right? Visible signature, optical signature. Then third signature is the डिजिटल सिग्नेचर, विच इज द ओटीपी वेरीफाइड सर्विस ऑफ जो आधार की जो सेवा है, हम उस सेवा को थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे. दैट इज थर्ड. एंड फोर्थ इज द वर्चुअल सिग्नेचर. दीज 4 सिग्नेचर जो है इज कैप्चरिंग, एंड मेरे योर दिस सर्विस विल बी ए बैकएंड सर्विस. सो जहां कहीं भी सिग्नेचर की जरूरत होगी, चाहे वो थानेदार के सिग्नेचर की जरूरत हो, चाहे वो विक्टिम के सिग्नेचर की जरूरत हो, या आईओ के सिग्नेचर की जरूरत हो, चाहे विटनेस के सिग्नेचर की जरूरत हो, दिस सर्विस विल बी प्रेस्ड इनटू द एक्शन, राइट? तो जो भविष्य के जो स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट विल आल्सो बी साइंड बाय द विटनेस, आई मीन जहां पे जरूरत है, राइट? एंड स्पेशली इफ द स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय द कम्युनिटी, because community would also be playing a role before police is reaching over there. So it and basically whatever is said to the community, it is admissible in court of law, it under the section 8 and 9 and even under section 25, जो कि जिसमें पुलिस के ऊपर तो बंदिश लगाई गई है कि कॉन्फेशन पुलिस के ग्राह्य नहीं होगा, बट that is admissible in case of
प्राइवेट पर्सन। तो इसकी जहां भी जरूरत पड़ेगी, दिस विल बी ए सर्विस विच विल बी प्रेस्ड इन एक्शन इन टोटो। जहां कहीं भी लेंगे वो चारों सिग्नेचर लेंगे। एंड जो इनक्रिप्शन और हैश वैल्यू प्रोटेक्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन, दैट विल बिकम ए स्टैंडर्ड सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट विल बी यूज एवरीवेयर। सो कोई भी हमारी सैंक्टिटी को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता है इन कोर्ट। Is it making sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do you have any question on this? Yes, sir. Because it's a basically flat service. But अच्छा हाँ, इसमें एक चीज important है. I have explained the process. You should have asked question for that. So once you have entered into or your signature is entered into the document, now there is a second assignment to you to the flow process. तो फ्लो प्रोसेस क्या है कि वो यहां से सब चीजों को डॉक्यूमेंट को उठा के जो सिटीजन पोर्टल है उसके माध्यम से वो सीसीटीएनएस में पहुंचेगा। तो उसके दो रूट रहेंगे, एक सीसीटीएनएस से में पहुंच के रहेगा और दूसरा डायरेक्टली उसके ऐप में पहुंच जाएगा। जो थानेदार का ऐप है और सुपरवाइजरी ऑफिसर का ऐप है वहां पे भी वो पहुंच जाएगी। ठीक है ना। नाउ थाना प्रभारी के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो सिग्नेचर करे, तो जो आपका सिग्नेचर की एप्लीकेशन है दैट विल बी अवेलेबल एट थाना प्रभारी एंड। तो वो हम जो है ना एनसीआरबी से वो करके वी विल गिव दिस मॉड्यूल टू देम सो दैट दे कैन अलाउ द सिमिलर फीचर फॉर द थानेदार आल्सो। तो थानेदार या और कोई पुलिस ऑफिसर जो भी उसमें कंपिटेंट ऑफिसर है, हिज सिग्नेचर विल बी कैप्चर्ड। यदि उसने सिग्नेचर कर दिए तो ये एफआईआर बन गया है and FIR जो है ना will be backtracked and through app it will come into the app of the complainant or victim। और यदि उसने ऐसे 100 FIR की हुई हैं तो वो 100 जो है ना आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगी और वो किसी भी आइकॉन में प्रेस करके उस केस में क्या चल रहा है वो देख पाएगा, वो उसमें फीडबैक दे पाएगा, वो सब काम कर पाएगा। बट एनीवे आपका तो जो है वो उस ऐप वाले की कार्रवाई रहेगी जहां पे जो कम्युनिटी ऐप है। बट यू कैन आल्सो जो है सजेस्ट दैट बिकॉज दैट ऐप जो है दैट हैज टू आई मीन इट विल रियल टाइम बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेटस है उसको कैप्चर करके भी वो ऐप में दिखाएगा। उसमें हमारी सर्विसेज को वो ग्रेड कर सकता है, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बता सकता है, वो सजेशन दे सकता है, वो फीडबैक दे सकता है। इतना पावर हम कम्युनिटी को या विक्टिम को या पब्लिक को दे रहे हैं। राइट। तो अब जो है ना अभी अपने बड़ी सिंपल सी बात कही कि उसके पास एफआईआर गई और उसने सिग्नेचर कर दिए। प्रोसेस इज नॉट एज सिंपल। यदि अज्यूम करिए थाने प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने में कुछ रिजर्वेशन है तो he can put those reservation 1 2 3 4 5 जो भी उसके हैं and then he can submit those reservation, right। इन रिजर्वेशन पे भी उसके सिग्नेचर होंगे। सिस्टम इसको ये जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो सेक्शन 154 के तहत होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसकी जो सेक्शन 154 है उसके तहत एफआईआर दर्ज होती है। तो सिस्टम क्या करेगा, यदि उसने कोई रीजन दिए तो उस रीजन और कंटेंट को लेके वो एसपी को परोसेगा जाके। तो ये इट विल अपीयर ऑन द मॉड्यूल ऑफ थाना प्रभारी सॉरी ऑफ एसपी और ऐप ऑफ एसपी। तो एसपी के पास जो है वो जरूरी नहीं है कि वो डेस्कटॉप पे ही बैठा रहे, तो उसके ऐप में भी पहुंच जाएगा और सीसीटीएनएस के उसके मॉड्यूल में भी पहुंच जाएगा। नाउ अंडर सेक्शन अंडर सब सेक्शन 3 उसमें एसपी को जो है ना ये पावर दिए गए हैं कि उसे उसके एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने का पावर है और उसको या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या किसी को इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। और जिसको भी वो इन्वेस्टिगेशन देगा वो व्यक्ति चाहे उसकी कुछ भी रैंक हो, चाहे वो हवलदार हो चाहे एएसआई हो, वो उस केस के लिए थाना प्रभारी के अधिकार उसको मिल जाएंगे। तो उसे जाके थाना प्रभारी को मनाने की जरूरत नहीं है। He can do everything under his own signature. That is a great advantage. अब जो है हम एसपी को भी लीवे देना चाहते हैं। एज्यूम करिए
एसपी के पास भी यदि कोई कारण है कि वो एफआईआर में उसे कन्वर्ट ना करना चाहे, तो जैसा थाना प्रभारी ने रीजन लिखे हुए हैं, ऐसा ही एसपी को भी रीजन लिखना है, और उन रीजन के साथ ही विल पुट हिज सिग्नेचर एंड द सिस्टम विल टेक एफआईआर का कंटेंट, थाना प्रभारी ने क्या लिखा वो और एसपी ने क्या लिखा वो, इन सबको लेके वो फिर से कंप्लेनेंट के पास पहुंच जाएगा उसके ऐप पे, राइट। और उस कंप्लेनेंट से कहेगा कि देखिए साहब आपकी एफआईआर, इससे निश्चित तौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। हमारे थाना प्रभारी महोदय ये कह रहे हैं और हमारे एसपी महोदय ये कह रहे हैं, अब आप ये बताइए कि जो आपने हमें बताया था वो सही था, तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप विड्रॉ करना चाहते हैं। यदि वो विड्रॉ करता है, इसका मतलब है कि उसने जो बात कही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट रही होगी, तो वो ही कैन विड्रॉ। यदि मान लो कहता है नहीं मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो सिस्टम उसको एक एफिडेविट बना के देगा। उस एफिडेविट को वो डिजिटली साइन करेगा। यदि कोर्ट की कोई फीस है तो पेमेंट लिंक भी जनरेट करेगा सिस्टम, और जो पेमेंट का जो अपने ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन का यूज करते हुए वो वहीं से कोर्ट फीस को पे कर पाएगा। और फिर इसको सिस्टम जो है विल पुश इट टू द जुडिशियल सिस्टम के तहत वो उनको जाके 156(3) रेड विथ 190 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के दरवाजे पे पहुंच जाएगा, और मजिस्ट्रेट से कहेगा कि साहब ये कंटेंट है, ये रीजन है, ये इसका फरियादी का एफिडेविट है, अब आप इसमें कॉल कर लीजिए कि यदि एफआईआर बनती है तो आप निर्देश जारी करिए। और इसके बाद एक हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है। वो हाई कोर्ट का ऑप्शन हम आपको बताएंगे कि अभी एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये 3 ऑप्शन तो हम निश्चित तौर पर देंगे। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिशन आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। आपके पास यदि लॉजिक नहीं है तो कोई दूसरा विक्टिम की मदद करेगा एफआईआर दर्ज करने में। So we will bring lot of transparency, lot of objectivity and lot of faith in the system. तो इसके से जो है बहुत सारा जो है ना विश्वास पैदा होगा, बहुत सारी सुविधा होगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो विक्टिम है उसको खुद भटकना नहीं पड़ेगा। ना वो एसपी के पास जा रहा है, ना वो कोर्ट के पास जा रहा है, सिस्टम उसकी ये कार्रवाई करने में मदद कर रहा है। और आगे चल के यदि उसको विधिक सहायता की भी जरूरत होगी तो हमारा सिस्टम उसको विधिक सहायता भी अवेलेबल कराएगा। हम इतनी ज्यादा मदद आम पब्लिक की कर पाएंगे। आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir, nice. Yeah. sir, I wanted to ask if this app is going to be a web app or an Android app. देखिए, इट विल बी ए सर्विस को अपन जहां चाहें उस प्लेटफॉर्म पे परोस दें। यू गॉट द आइडिया? वेब पोर्टल और ऐप हैं, दीज आर द फ्रंट एंड ऑफ द सर्विस। दिस विल बी ए बैक एंड एंड जगह पे यूज की जाएगी। इज दैट क्लियर? इट विल बी यूज एवरीवेयर, बिकॉज जो है जब सीसीटीएनएस पे जाएंगे तो डेस्कटॉप होगा, जब हम जो है ना ऑफिसर को फील्ड में मदद करेंगे तो वो ऐप पे ऑपरेट कर रहा होगा। सो द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसकी रूटिंग जो रहेगी वो इमीडिएटली, चाहे वो ऐप से ऑपरेट कर रहा हो, उसको वो सीसीटीएनएस में ले जाके दोबारा परोस देगा, और इट विल बी यूजिंग दैट सिटीजन पोर्टल टू मेक दैट हैपन। और हर एंगल पे हमारा जो सिस्टम है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों पे भी ध्यान रखेगा, सो दैट वी विल नॉट अलाउ एनी थ्रेट टू एंटर। Okay, Good sir. evening, sir. Yeah. Sir, so as we are using blockchain in this software, so there will be some particular nodes, right, through which the information is passed. Basically, यहाँ blockchain technology would be not be doing in say cryptocurrency के रूप में आप उसको, which is the normal people understand blockchain technology. So there will be nothing like a blockchain technology which you use for the cryptocurrency.
Here blockchain technology will be using the hash to hash value matching, that's all, finished. इसका corroboration जो है ना will be from the centralized system, not from the nodes, because it will not be operating to the public. So इसमें वेरिफिकेशन का पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो है ना नोटिफाइड पीपल यूज कर रहे हैं, ऑथराइज्ड पीपल यूज कर रहे हैं, so verification will be through the system. जो blockchain technology will be only doing the things of hash value to hash value mapping. बीच में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई पैकेट तो गड़बड़ नहीं हुआ, that kind of the purity it will ensure. तो जब आपका पैकेट फ्लो हो रहा है, it is a intact packet, though it is moving from a authorized person, but it will be going or it will be encrypted, it will be protected with hash value, तो उसको छेड़खाने का संभावना कुछ नहीं है, लेकिन एज ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा करती है, वो हैश वैल्यू टू हैश वैल्यू जो है ना उसको मैप करेगी, पहले मैच करेगी, देन तब उसको जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए इजाजत देगी. दैट विल बी डूइंग, बट here blockchain technology will not be used in the way it is used for the cryptocurrency. It will not be used that way. और जनरली लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ते हैं, तो वहां पे ओपन नोड, पब्लिक नोड, बिकॉज उसमें कोई सेंट्रलाइज यूनिट नहीं होता है. तो यहाँ तो यहाँ तो कोई पब्लिक है ही नहीं, राइट? सो इट विल बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू द एक्सटेंट ऑफ मैपिंग और मैचिंग हैश वैल्यूज, बट इट विल नॉट बी यूजिंग द पब्लिक नोड्स generally which we use in the cryptocurrency. I hope this point is clear to you. Yes, sir. So this will be a private and it will be private and it's largely it is a mapping or matching कि उस पैकेट में जो ना हैश वैल्यू को मैच करने के बाद ही वो आगे बढ़ेगी. yes, ब्लॉकचेन का मतलब ये है, it will be and if required we will be creating a trail of it, जिसको हम चेन ऑफ कस्टडी का नाम देके सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी वो करेंगे. तो जहां से जहां फ्लो हो रही है, we will say कि साहब देखिए this is hash value matching and we will create a certificate of chain of custody, जो कि उस एविडेंस के साथ टैग कर दिया जाएगा and it will go in court. तो कोर्ट में हम तीन चीजों को हमेशा प्रूव करेंगे. सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी that will be flowing from your blockchain technology, certificate of admissibility which will be flowing from evidence act 65B. ऐसे ही धीरे धीरे आप तो कानून के बारे में भी थोड़ा पढ़ने लगेंगे, कानून भी समझने लगेंगे, ठीक है ना? तो एविडेंस एक्ट की 65B से जो है हम उनको सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी देंगे एंड चेन ऑफ कस्टडी का भी एविडेंस देंगे. सो बेसिकली चेन ऑफ कस्टडी विल बी इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट एंड चेन ऑफ इंटीग्रिटी विल बी सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी विल बी अनदर सर्टिफिकेट, क्योंकि जो चेन ऑफ कस्टडी है we will certificate that will be using for the physical movement of the article also. तो जो ऐसे आपने कोई एविडेंस कलेक्ट किया, तो वो एविडेंस पैकेज होके जा रहा है, तो हर जगह पे उसकी एक QR बेस्ड चेन ऑफ कस्टडी ट्रेल क्रिएट की जाएगी, जिसमें कि जो दे रहा है, जो ले रहा है, उसका फोटो, जो पैकेट का फोटो, उसकी लोकेशन, डेट, इस तरीके से वो एक पूरा एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा along with the thumbnail of the photograph including the photograph of that object, right? यहाँ पे चूंकि चीजें फिजिकली मूव नहीं कर रही हैं, तो ये डिजिटल जो है ना चेन ऑफ कस्टडी को प्रूव करेगा. सो इट विल बी ऑलमोस्ट दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी नथिंग बट इट इज ए चेन ऑफ कस्टडी ओनली. एम आई राइट? yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. So, who will be able to access the evidence and FIR? Only the victim and the operating police officer. It will be going to the victim, it will be going to system, it will be going to the police officer, and it will be available for the whole supervisory hierarchy, including DGP. तो जो इनका जो थानों का है वो ग्रुपिंग होगा SDOP के अंदर, फिर SDOP विल बी, तो उसके लिए ऑलरेडी जियो फेंसिंग वाला जो है प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी काम कर लिया है, दैट विल बी यूज फॉर दैट इंटीग्रेशन. सो जो कुछ भी जहां हो रहा है रियल टाइम बेसिस में सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर उसको देख पाएंगे एंड दे कैन कंट्रीब्यूट आल्सो. तो सिस्टम विल कैप्चर कि सुपरवाइजरी ऑफिसर कितना सुपरवाइजरी रोल कर रहे हैं, एंड प्रोबब्ली कल वो सुपरवाइजरी ऑफिसर की भी जो ना ACR और परफॉर्मेंस यहीं से कैप्चर होगा कि हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम. अभी जो है उनकी ज्यादा एनर्जी जवाब तलब लेने में जाती है,
they are not applying their mind for the real investigation. तो हम उनकी एनर्जी सुपरवाइजरी ऑफिसर की इंक्लूडिंग ऑफ एसपी वी विल बी इन पोजीशन टू ब्रिंग इनटू द कोर पुलिस प्रोफेशनल एरियाज जो अभी नहीं हो पा रहा है. तो दिस विल बी वन ऑफ द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ इट. Sir, can Aadhaar UID be also used as the symmetric key for the blockchain network? That we have to examine to what extent is permissible. Otherwise, we will use simply for the OTP verification. That is the open service available to each and everybody, because we are not really getting into any database. We are just using their service, and that service is available as a for anybody and everybody, right? So it is some kind of the service, but I am not very sure whether your proposition, if it is hit by any privacy thing, and whether Aadhaar जो है authority is open to it or not. But I am open to your suggestion. If it is permissible under Aadhaar वो policy, so then we will certainly use it.